سر مائک کو ریکٹ کر لیجیے. میں پیسٹیسائڈ ٹاکسیسٹی ان ہنی بیز یہ تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد وہ وی کین مینیج دس ٹاکسیسٹی ود ریفرنس ٹو بی کیپنگ. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہنی بی از پروبیبلی among the most exposed species to the pesticides applied to the crops. And the bees are essential pollinators both in natural ecosystems and agricultural crops. Most natural pollinations they take place through this honeybees and other bees. Honeybees pollinate a third of the food we eat in our daily life. In the recent years, a decline and disappearance in the honeybee species is seen in recent years, and it is linked to the pesticide. Okay, thank you. Okay. یہ حال ہی میں پچھلے 10-15 سالوں میں یہ جو ہنی بی کی پاپولیشن ہے یہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اس کے بارے میں زیادہ تر جو گواہ ہیں دوسری بہت ساری بایولوجیکل ڈیزیزز ہیں لائک وائرس ہیں پیراسائٹس ہیں یہ دوسری ڈیزیزز ہیں یہ پرابلمز ہیں. لیکن اس میں جو میجر پرابلم ڈائگنوز ہوا ہے جو ریسنٹ جو رپورٹس ہیں اس میں بگ مورٹیلٹیز ہیں ان ڈیولپنگ کنٹریز آف دی ہنی there are some chemical substances that the pesticides behind. Non-judicious use ان کا جو ہے بے تحاشا استعمال یا بغیر کسی مینجمنٹ کے یا کسی دیکھ بھال کے جو ہے اس کو استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے یعنی کہ ایک قسم کا یہ کہا گیا ہے کہ 1/3 جو وجوہات ہیں یہ اس کے ڈکلائن کی پاپولیشن میں وہ اس میں پیسٹیسائڈز کا کردار ہے کم از کم. اب یہ پیسٹیسائڈز کس طرح جو ہے اس کو جو ہے ہنی بی کی پاپولیشن کو افیکٹ کرتی ہیں. یہ ڈائریکٹلی بھی افیکٹ کرتی ہیں جب یہ مکھیاں وغیرہ موجود ہوتی ہیں کسی ماحول میں جہاں فصلیں ہیں یا جہاں ان کے لیے اٹریکٹیو ویڈز ہیں جہاں پہ وہ جو ہے جاتی ہیں اور وہ کلیکٹ کرتی ہیں نیکٹر وغیرہ تو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں. اور جب واپس آتی ہیں اپنی ہائیوز میں واپس آتی ہیں تو وہاں پہ ان کو کنٹامینیٹ کر دیتی ہیں. ایک ڈائریکٹ ایکسپوجر بھی ہے اور انڈائریکٹلی جو یہ پروڈکٹس بناتی ہیں یہ کنزیومیبلس جن کو ہم کہتے ہیں ریل جیلی ہے ویکس ہے ہنی ہے اس میں بھی اس کے ریزیڈیوز ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ پبلک ہیلتھ کا پرابلم ہے. So a growing concern is emerging impact of pesticides on honey. تو اس لیے اب ون ہیلتھ پرسپیکٹو میں جس طرح وہاں باقی سارے ماحول کو صحت مندانہ سوچا جا رہا ہے کہ ہماری ساری خوراک سارا ماحول سب کچھ صحت مند ہو اور محفوظ ہو تاکہ ہماری انسانی آبادی کے لیے وہ مسائل نہ ہوں. اسی طرح اب یہ بھی ایک ابھرتی ہوئی انڈسٹری ہے اور اس سے بہت سارے پروڈکٹس دی جا رہی ہیں تو اس کا بھی محفوظ ہونا اور ہائیجینک ہونا اور کسی قسم کے ریزیڈیوز سے یا پرابلم سے محفوظ ہونا تو انتہائی ضروری ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں اب جو ہے بہت ساری کوششیں کاوشیں اور جو ہے اسٹڈیز کی جا رہی ہیں تو ان کی کو جو ہم تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ پیسٹیسائڈ ایکچولی کیسے پرابلم کرتی ہیں اور کیسے ہم ان کو سے بچا جا سکتا ہے یا ہم جو ہے اس کے ہماری یہ جو انڈسٹری ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے برقرار رکھ سکتے ہیں. اچھا ہنی بی جو ہے ایک امپورٹنٹ انسیکٹ ہے لائک دی ادر بیز دے آر you can say that they are good natural sentinels. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بطور خاص یہ جو انسیکٹ ہیں یہ جو پولینیشن کرتے ہیں فصلوں کی یا دوسری چیزوں کی یہ ایک قسم کے ارلی ڈیٹیکٹرز ہیں. نیچر میں یہ ہائیلی سینسٹیو اسپیشیز کہ کوئی بھی کسی قسم کی تبدیلی یا خرابی پیدا ہو رہی ہے یا کسی کی بھی پیسٹیسائڈ یا ٹاکسک سبسٹانس کے ساتھ آ رہے ہیں دوسرے اینیمل یا اسپیشیز کے مقابلے میں جو ٹیسٹیل اینیملز ہیں ان کے مقابلے میں یہ سب سے پہلے ان میں جو ہے کوئی نہ کوئی
चाहे वो एट बायोकेमिकल लेवल हो, मोलेकुलर लेवल हो या किसी और लेवल पे कोई ना कोई एल्ट्रेशन या तब्दीली आती है, तो इनमें सबसे पहले आती है। अगर इनको थारोली स्टडी किया जाए तो हम इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में ये इकोटॉक्सिकॉलॉजी जो है वो वेल इन टाइम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये इसकी ये भी इम्पोर्टेंस है इसके अलावा। तो इसलिए जो है नॉट ओनली फॉर द पोलिनेशन to save the pollination and productivity of the crops, plus the chemical residues in order to this consumables and the public health. Really important to study the animals. अब हम आते हैं कि इनका एक्सपोजर किस लेवल तक है, पेस्टिसाइड्स कहाँ जो है खतरात हैं पेस्टिसाइड्स के हनी बी कीपिंग में या इंडस्ट्री में। तो हम ये पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, लाइक इन स्प्रेज, सीड ट्रीटमेंट्स, मैनी टाइप्स ऑफ द सीड बिफोर द कल्टीवेशन दे आर ट्रीटेड। तो उनको वहाँ भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जो सब्सटेंसेस पेस्टिसाइड होते हैं कि जब वो इसी तरह वो एज ए रेजिड्यूज उनमें मौजूद रहते हैं, प्लांट्स में भी और उनके फ्लावरिंग में भी और उन सारे। और तीसरी हमारी जो एप्लीकेशन है पेस्टिसाइड की वो सेल एप्लीकेशन है। तीनों जो मोडालिटीज़ हैं, तो तीनों फॉर्म में जहाँ कहीं भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल होती हैं वो इन हनीबीज की पॉपुलेशन के लिए टॉक्सिक हो सकती है किसी न किसी वजह से। अगरचे स्प्रेज जो हैं एक नॉन सिस्टेमिक एक्सपोजर होते हैं कि यानी कि ये फिज़ा में मौजूद हों इसके ड्रॉपलेट्स या जहाँ पे वो मक्खियाँ बैठती हैं वहाँ लीव्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर या जहाँ से वो पोलन कलेक्ट करती हैं वहाँ से कहीं भी जो कंटेक्ट जो होती हैं पेस्टिसाइड के साथ वहाँ से ये मसाइल वहाँ से ये पेस्टिसाइड केमिकल सब्सटेंसेस ये ले सकती हैं, ये इनकी बॉडी में रह जाती हैं और वहाँ से जब वो वापस आती हैं अपने हाइव में तो वहाँ वो जो दूसरी पॉपुलेशन को जो है वो कंटामिनेट कर सकती है। So कंटैक्ट और इंजेक्शन के अलावा अदर जो है उसकी कंटेमिनेशन का जो मोड है या रूट है वो गैसियस फेज केमिकल इंटॉक्सिकेशन की है। और हाईली वोलेटाइल पेस्टिसाइड्स लाइक क्लोरोपाइरिफॉस एंड दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस दे हैव दिस टाइप ऑफ द नेचर, दे कैन go into the bees to gaseous phase। सीड ट्रीटमेंट एक जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक मेजर एक्सपोजर राउट है हनी पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी के लिए। तो सीड में जाते हैं और वहाँ से जो है डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं हनी की उसकी एज रेजिड्यूज मौजूद रहते हैं। सेल एक्सपोजर भी उसी तरह एक इम्पॉर्टेंट है, एक्सपोजर राउट है इसका पेस्टिसाइड्स का। और पर्टिकुलरली नेचर ऑफ द एप्लीकेशन डिपेंड्स कि दी अफेक्टिव वीड्स एंड अदर ब्लूमिंग जो फ्लावर्स हैं या जब वो इस्तेमाल होते हैं तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। इसके अलावा जो है रन ऑफ वाटर रन ऑफ और अदर जहाँ कहीं स्प्रे होते हैं वहाँ से जो पानी शामिल होता है और वो दूसरी जगह पहुँचता है उसमें भी केमिकल रेजिड्यूज हो सकते हैं। तो हम ये पेस्टिसाइड्स डिफरेंट टाइप्स के इस्तेमाल करते हैं लाइक इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और हर्बिसाइड। ये तीनों किस्म के जो हैं ये सारे ही प्रॉब्लमेटिक हैं उसके लिए शायद। असल में ये पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जो फसलों में है वो हनी बी उसका टारगेट नहीं है, ये नॉन टारगेट स्पीशीज है। टारगेट असल फसलें होती हैं, वहाँ पैदावार बढ़ाना होता है। चूँकि ये वहीं पे होती हैं अमूमन, ये जो बी कीपिंग है उन्हीं फसलों के पास या उधर ही की जाती है, तो इसलिए वो एज ए क्रॉस कंटामिनेशन कह लें या उस तरह वहाँ उनका एक्सपोजर होता है और इसकी वजह से वो जो है डिस्टर्ब होता है। अब अगर पेस्टिसाइड की टॉक्सिसिटी को समझना हो तो इसकी जो केमिकल नेचर है या केमिस्ट्री है को समझना जरूरी है। मोस्टली जो पेस्टिसाइड्स हैं चाहे वो इंसेक्टिसाइड हैं या फंजीसाइड हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो सिंथेटिक केमिकल और ज़्यादातर जो मेजर हैं इनमें वो ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है और ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड जो है वो टॉक्सिक होते हैं बहुत ज़्यादा एंड दे हैव ए स्पेसिफिक मैकेनिज्म
کہ اس میں ہنی بی میں بھی لائک ادر اینیملز اور میمل دے افیکٹ دا نروس سسٹم، جس کی وجہ سے کچھ ایسے کلینکل سائنز آتے ہیں ہنی بیز میں بھی، جیسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ یہاں پاسبلی جو ہے یا انسیکٹیسائڈ کہ مثلاً یہ کولینسٹریز انزائمز جو ہیں انہبٹ کرتے ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے ایسیٹائلکولین جو ہے میجر کولینرجک جو ٹرانسمیٹر ہے اس کی اکاموڈیشن ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اس کا کولینرجک لائک افیکٹ جو ہے وہ پرسسٹ کرتا ہے اور لانگر ٹائم وہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسٹیمولیشن ہوتی ہے اور وہ اس پہ جو ہے ڈفرینٹ بیہیویئر جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ Based on acute toxicity, there are very few studies on the chronic toxicity of pesticides on the honeybees. Based on acute toxicity test methods, the people have actually categorized these pesticides. تو انہوں نے ان کو 3 بڑے گروپوں میں تقسیم کر دیا ہے، گروپ 1, 2 and 3۔ اب اس کو انہوں نے ایک یعنی کہ گریڈنگ کر کے اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ اگر کوئی بھی پروڈکٹ یا پیسٹیسائڈ جس کی لیتھل ڈوز 50 جو ہے 2 مائکرو گرام پر بی ہے یا اس سے کم ہے تو وہ ہائیلی ٹاکسک ہے۔ اس کے استعمال کے لیے ان کی گائیڈ لائن یہ ہیں کہ جہاں کہیں بھی اس کا استعمال ضروری ہو تو وہ یہ دیکھا جائے کہ اس ایریا میں اس علاقہ میں یہ بی کیپنگ کی کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے۔ اگر وہ چل رہی ہو تو اس کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ اس کے الٹرنیٹ یا کوئی اور جو ہے پیسٹیسائڈ جو لو رسک یا لو ٹاکسسٹی پروفائل پیسٹیسائڈ ہے اس کو پریفر کیا جائے، یا اگر ضروری ہی ہو تو اس کے لیے کچھ اور دوسری مینجمنٹ پریکٹسز ہیں کہ اس کو اس ٹائم اس کو جو ہے ونڈ ڈائریکشن کو دیکھیں کہ وہ جو اسپرے کرنے کے بعد آپ کے جو ہیں وہ جو گیسیس ڈراپلیٹس ہیں اس طرف نہ جائیں جس طرف جو ہے وہ بی کیپنگ کی ایکٹیویٹیز ہیں جو آئل رکھے ہوئے ہیں اس طرح ہے، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ دوسرا گروپ جو ہے وہ ہے جس میں ایکٹیو انگریڈینٹس کی جو LD50 ویلیوز ہیں وہ 2 سے 11 کے درمیان، یہ ریلیٹیولی لیس ٹاکسک ہیں، یعنی ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے ان کا استعمال۔ یہ اس ایریاز میں جہاں پہ بھی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں بی کیپنگ ایکٹیویٹی وہاں کرافٹس پہ یہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن مین پریکاشنس۔ اور دوسرے جو ہیں جن کی جو ہے 50 ویلیوز مور دین 11 مائکرو گرام پر بھی ہیں وہ دوسرے گروپ میں آتے ہیں اور وہ سیف سمجھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی خاص پروٹیکشن نہیں ہوتی۔ اور یہ ڈیولپڈ کنٹریز میں جن کی جو ہے اکارڈنگ ٹو دی these categories all the pesticides when they are marketed جب بھی ان کو بھیجا جاتا ہے مارکیٹ میں اس کو اس کے مطابق جو ہے کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں ظاہر دی جاتی ہے اس کو کیسے اور کب استعمال کرنا ہے اور کہاں کا استعمال کرنا ہے۔ موسٹلی جو ہمارے ہیں پیسٹیسائڈ جو کامنلی یوز ہوتے ہیں فصلوں میں وہ اگر فاسفیٹس ہیں نیونیکلیوٹینائڈز ہیں کلورپیریفاس اور دوسرے تیسرے جو ہیں ان اگر وہاں ایکسپوجر ہو یعنی بیز کے ساتھ تو کس قسم کے کلینکل سائنس یا سمپٹمز ہم دیکھنے میں آتے ہیں، تو اس سلائڈ میں تھوڑا سا ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایکسیسو نمبرز آف ڈیڈ اینڈ ڈائنگ ہنی بیز ان فرنٹ آف دی آئیز وین دے ریٹرن بیک، جب وہ واپس آتے ہیں اس کے فارجنگ ایکٹیویٹی کے بعد تو اکثر جو ہے نجات مردہ پائی جاتی ہیں یا دے آر انیبل ٹو موو، یوزلی ان کے ہیڈز کے بعد دے ہیو انکریز ڈیفینسونیس کہ ان کا بیہیویئر بس عجیب سا ہوتا ہے۔ دے ہیو دا لیکنگ فارجنگ بیز آن نارملی اٹریکٹیو بلومنگ کلاس، کہ وہ لتھارجی یہ قسم کی یا ان میں اتنی ہمت سخت نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ دور جا سکیں جہاں پہ وہ بھی ایکٹیویٹی رکھتی ہوتی ہے اس کے بعد۔ They are paralyzed once they are back. Normally they are the jerky movements, rapid movements and spinning on the back. یہ کامنلی جو ہیں سائنز ہیں اس کے یہ ڈفرینٹ ٹاکسسٹیز میں ان کے ڈفرینٹ سائنس آتے ہیں، پر ان جنرل جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور جب ہائی ٹاکسک ہوں تو جو جو پیسٹیسائڈ پوائزننگ ہے کہ دیٹ دے ہیو دا ریگرجیٹیشن آف ہنی، stomach contents and tongue extension. That is
पैथोलोमैनिक साइन हम उसको कह सकते हैं कि ये एक यूनिक किस्म की अलामत है कि ये यहाँ ज़रूर कोई ना कोई जो है पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी हुई है कि नियर अराउंड कि कहीं जो है वो पेस्टिसाइड स्प्रे वगैरह किए गए हैं, यूज़ किया गया और वहाँ से ये इनका इफेक्ट हुआ है। तो अब पेस्टिसाइड्स की जो मैनेजमेंट है कि हम किस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं कि हम जो है मैक्सिमम बेनिफिट्स लें और फिर मिनिमम लॉसेस, और या इन पेस्टिसाइड को किस तरह हम जो है वाइजली जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट इज़ रिकमेंडेड दैट यूज पेस्टिसाइड ओनली व्हेन नेसेसरी। अगर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से जो है आपकी जो क्रॉप्स हैं या जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो मेंटेन रही जा सकती है, तब एक्टिविटीज़ हैं तो मैक्सिमम ये कोशिश करें कि हम कम ही इस्तेमाल करें या इस्तेमाल करें जब बहुत ही ज़रूरी है। डोंट अप्लाई द पेस्टिसाइड व्हेन क्रॉप्स आर इन ब्लूम। ओके, कि जब फसलें इस हालत में हैं कि वो फूल लिए हैं और इस ग्लोबल पे हैं, तो यकीनन उस वक्त जो है ये पोलिनेटर्स जो हैं, ये मक्खियाँ और ये सबसे ज़्यादा वहाँ आते हैं, तो कोशिश करें उस वक्त जो है आपको कम से कम स्प्रे करना है। उससे पहले ही मैनेज कर लें अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है या मुतवक्के है। एंड अप्लाई द पेस्टिसाइड्स व्हेन बीज आर नॉट फ्लाइंग। अमूमन शाम के वक्त जो है स्प्रे करिए ताकि वो जो है सारा दिन की जो है फॉरेजिंग एक्टिविटी ख़त्म करके मक्खियाँ वापस छतों की तरफ वापस आ जाए। और इसके बाद कोशिश करें कि ये जो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं वो उनको वेरी प्रिसाइजली, वेरी वाइजली, कि उसको बड़ा ध्यान से सही मिकदार में और सही तरीक़ाकार के मुताबिक जिस तरह उन्होंने बताया है, और उसको तो आम जो हमारा वहाँ खड़ा पानी है, ये इस्तेमाल शुदा पानी है, दूसरा है उसको उससे कंटेमिनेट ना करें, वो आलूदा ना हो जाए, ताकि वो वहाँ पर मसला मुस्तकिल ना रहे। खैर जो बस स्प्रे किया गया या जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया गया 48 आवर 2 आवर 48 या 2-3 दिन के बाद वो उसका जो है कंटेमिनेशन लेवल कम हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी प्रॉब्लम वहाँ ना रहे। यूज लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स और फार्मुलेशन। हाँ, कुछ कंपाउंड इस हाईली टॉक्सिक हैं और कुछ फार्मुलेशन इस किस्म की हैं कि जो उस कंपाउंड को मोर टॉक्सिक कर देते हैं। तो इसलिए जहाँ कहीं की जिन इलाकों में या जिन फसलात के दरमियान में ये हनी बी कीपिंग एक्टिविटीज़ है, वहाँ पे ऐसी फार्मुलेशन हर किस इस्तेमाल ना करें, उनके मशवरे के साथ या किसी एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ इसको इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो एनकैप्सुलेटेड इंसेक्टिसाइड, ये बहुत टॉक्सिक है बीज के लिए, क्योंकि इनका माइक्रो कैप्सूल का जो साइज़ है ऑलमोस्ट पोलन साइज के इक्विवेलेंट है, तो ये उसकी वजह से उनको जो है इससे धोखा होता है, तो वो उसको ही एक पोलन समझ के जो है ना उसको ले रही होती है, जिसलिए ये भी प्रॉब्लमेटिक है, ये इंडस्ट्री के लिए भी और ये furthermore identify the attractive blooms for particularly the weeds attractive for the honeybees, the pollinators, कि वहाँ पे उनको जो है कम इस पर एक्सपोजर हो स्प्रे का या इनको कम करना पड़े। और एक और पॉइंट जो ज़रूरी है इसके लिए वो ये है कि अगर नागुज़ीर हो कि आपने ये इस्तेमाल करना था पेस्टिसाइड को फसलों में, तो वहाँ जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं हनी बी कीपिंग, तो वहाँ जो हनी बी कीपर्स हैं उनको आप इन्फॉर्म करें, नोटिफाई करें कि हम फलां दिन फलां टाइम पे जो है हमें करना है, आप उस दिन के लिए अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ जो है इसको अकॉर्डिंगली मैनेज करें। यही जो है वो गाइडलाइंस हैं बेसिकली से जो हम जो है पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटीज़ को कम से कम कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो फिर सरसों का है, ये इसका क्लोवर का है, फिर साथ ये सिट्रस जो है, और इनमें कम से कम जो सिट्रस और क्लोवर का है इसमें हम अक्सर देखते हैं पेस्टिसाइड्स की स्प्रे। अच्छा, अब अगर तो क्लाइमेटिक चेंजेस वगैरह की वजह से वो जो है ना नेक्टर को जो टाइम होता है कभी बारिश हो जाती है, कभी सिर्फ गर्मी पड़ जाती है, और जब कभी आना शुरू होता है तो वो फलाने बाग को पता चलता है कि उसने जो है वो स्प्रे कर दिया। थोड़ा सा ये गाइड करें कि कौन सा टाइम होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर सिट्रस को ले लें, ये जो आइडियल टाइम होता है पेस्टिसाइड्स की स्प्रे के लिए
20 तारीख से 20 मार्च से लेके towards the end तक, तो इन 10 दिनों में क्या पेस्टिसाइड का कोई आइडियल होता है यूज होता है? एट द मोमेंट मैं पार्टिकुलरली ये सवाल पर टेस्ट का सकता नहीं मैं आपको बात नहीं बताऊँ। कोई और सवाल है तो पूछ लें। आपने जो ग्रुप 2 प्रिकॉशन मेजर के अंदर बताया था, ग्रुप 2 में आपने प्रिकॉशन मेजर्स बताए थे कि प्रिकॉशन मेजर्स अगर ले लिए जाएं तो वो क्या क्या हो सकते हैं मेजर्स? वो यही चीज़ें हैं कि अगर नागुज़ीर हो इसको इस्तेमाल करें तो पहले तो है जो बी कीपर्स हैं उनको नोटिफाई करें कि हम जो एक्टिविटीज़ हैं बी कीपिंग की वो मिनिमाइज करें। मतलब स्पेसिफिकली कोई ऐसी चीज़ बताएं कि मतलब रात को बी कीपिंग के डब्बे का मुंह बंद कर दिया जाए या कोई भी ऐसे क्या कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं इनके साथ? जी देखिए, मैनेजमेंट में डॉक्टर साहब ने आपको बिल्कुल बहुत अच्छी बातें बताई। अगर आप इसमें पहला पॉइंट देखिए, उसमें है कि जी पेस्टिसाइड तब इस्तेमाल करें जब ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो बी कीपर्स हैं वो तो फार्मर्स हैं ही। उनका इशू ये है कि वो दूसरे फार्मर्स जो हैं उनकी क्रॉप्स के ऊपर जाके तो उनसे नेक्टर या पॉलन उनका यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो बेस्ट एडवाइस इसमें सेकेंडली इसमें डॉक्टर साहब ने तीसरा पॉइंट दिया है टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो आप अगर उनके साथ जो स्पेशली उन रीजन्स के अंदर एग्रीकल्चर के जो ऑफिसर्स हैं या जो लोग फार्मर हैं तो हमेशा उनको आप एक बात बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है जैसे पेस्ट है उनकी क्रॉप्स के ऊपर, उनका जो बेस्ट किलिंग टाइम है वो सबसे बेस्ट किलिंग टाइम है जब वो इवनिंग के बाद स्प्रे करें। क्यों कि हम भी इवनिंग के बाद स्लो हो जाते हैं तो वो भी इवनिंग के बाद स्लो हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ कम हो जाती है और आप मैक्सिमम पेस्ट जो है वो उसको टारगेट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आपकी जितनी एप्लीकेशन हो वो इवनिंग टाइम में हो। बहुत से कुछ फार्मर्स हैं कॉटन गार्ड में, मैं उनको जानता हूँ पर्सनली, वो रात को एप्लीकेशन करते हैं क्योंकि पेस्ट उस वक्त एक्सपोज होता है, डार्कनेस होती है, वो बहुत सारे प्रॉब्लम से बचा होता है, वो बाहर आता है और उस वक्त जब आप अप्लाई करते हैं पेस्टिसाइड तो मैक्सिमम किल करते हैं। तो ये आप एक मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आप अपने पेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं जब आप लेट आवर्स में स्प्रे करेंगे। और ये वो लेट आवर्स हैं जब आपकी बीज वापस आ चुकी होती है तो आप बहुत सारे फॉरेजर अपने सेव कर सकते हैं। ठीक। सेकेंड उसमें ये है कि टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ये अगर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि नागुज़ीर सिचुएशन है तो पेस्टिसाइड स्प्रे करें। हमारे यहाँ जनरली लोग प्रॉपरली स्काउट नहीं करते पेस्ट और उनका टाइम ऑफ एप्लीकेशन कभी कभी मैच कर जाता है अर्ली फ्लावरिंग के साथ। तो हमेशा जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे सिट्रस है तो सिट्रस में फ्लावरिंग स्प्रिंग में आ रही है, उनके लिए बेस्ट जो उस वक्त प्रॉब्लम है वो फ्रूट नहीं है पेस्ट, उनको जो बेस्ट है वो लीव्स के ऊपर मौजूद है या ब्रांचेस में। तो उसकी एप्लीकेशन फ्लावर्स ओपनिंग से 2-3 हफ्ते पहले भी अगर वो एप्लीकेशन करते हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और आपको 1 हफ्ता ही चाहिए पेस्टिसाइड अप्लाई करने के बाद, 1 हफ्ते के अंदर 90% उसके रेजिड्यूज हमारा जो सूरज है वो उनको ख़त्म कर देता है। जो पेस्टिसाइड अब हम इस्तेमाल करते हैं वो पुरानी वाली पेस्टिसाइड जो महीना 2-2 महीने रहती थी वो ख़त्म हो गई, अब हम वो यूज़ नहीं करते। इवन ऑर्गेनोफॉस्फेट्स भी इसकी रेजिडुअल लाइफ है सन के अंदर वो 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप उनको ये मैसेज भी देने की कोशिश करें कि फ्लावरिंग आने से पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले उनके यहाँ जनरली सिट्रस इला का इशू होता है, वो उस वक्त मैनेज करें, पैसा भी कम होगा और उनकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। आप उनको लो पॉपुलेशन टेस्ट और लो कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन से इस तरफ जो है चेंज कर सकते हैं उनके बिहेवियर। तो एक्चुअली जो फार्मर है उसका बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है। तो अल्टीमेटली आप ये जो बेनिफिशियल हैं, क्योंकि बीज बेनिफिशियल हैं तो आप इनको सेव कर रहे हैं, आप उनको फ्री पॉलिनेशन सर्विसेज दे रहे हैं जो कि वो इवन आपको पेबैक भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि बस तो बी कीपर में उनको उल्टा उनसे शायद ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कम्युनिकेशन गैप्स हैं हमारे बेसिकली फार्मर के दरमियान और जो बी कीपर है इनके दरमियान ब्रिज कोई नहीं है और कम्युनिकेशन गैप होता है
ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتے بھی ہیں, پیغام پراپرلی ایک دوسرے کو دے نہیں پاتے, نہیں دیتے. جس کی وجہ سے یہ مسئلے چلے ہم نے آپ کو 2-3 پیغام دے دیے یہاں سے اس فورم سے, تو یہ آپ کائنڈلی کمیونیکیٹ کیجیے. دوسرا جو میں نے کہا کہ پلاٹ پروٹیکشن کے لوگ ہیں, پیسٹ بانڈنگ کے لوگ ہیں, ایگریکلچر آفیسر ہر تحصیل کے اندر ہے, تو وہ بھی اگر ان کو آپ یہ میسج دیں, ان کا میجر کام ہی میسج کو ڈسیمینیٹ کرنا, ان کی بات کو زیادہ سنیں گے, ان کے ذریعے سے آپ ان ریسورسز کو یوز کر سکتے ہیں, تو یہ ایک اسپیکٹ ہو سکتا ہے. تھینک یو سر, بہت شکریہ. تو ویسے